Hey, in the first part of the 100 dresses, we had seen like how the Peggy and Maddie. So basically, Maddie always used to think about Wanda, but Peggy sometimes used to make fun of her by asking some question that how many dresses does she have? And likewise, the Maddie never felt good by whenever yeah, Maddie never felt good whenever this question by asked. Uh, by the Peggy to the Wanda, and always she used to embarrass. She used to, uh, just make fun of her. And likewise, this is story get over. So कल हमने पढ़ा था, राइट, एंड फाइनली कंपटीशन होती है. कंपटीशन में वांदा जीतती है एंड वांडा वाई नॉट प्रेजेंट इन स्कूल for last 1 2 days, and the his applause, his appreciation was pending because people has appreciated her design, her thing that she had made. But in the second part we will learn like the Wanda is not coming in the school, but one day what's happened, the a student, they were walking in the school, जो स्टूडेंट थे स्कूल में घूम रहे थे, उस समय एक लेटर आता, एक मॉनिटर जो कि क्लास मॉनिटर होता है वो आता है, एक हाथ में लेटर लिए हुए प्रिंसिपल देते हैं उसको. And he came to the school, room number 13. He handed it to he hands it to Miss Mason. She is the instructor, class teacher, and she asked all the students to sit properly. She has something to share. सारे लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं, सारे बैठते हैं. Finally, she said that this letter she had got uh, from the Wanda's father. All be quiet, all try to listen what happened. So all people were using like there must be some cows and something has happened with the Wanda, that's why she not coming. And finally a letter came to here from the Wanda's father. So all sits quietly and listen carefully. Finally they all got to know that the father, उसके वांडा के father, he had sent the letter कि आपकी जो बेटी है, सॉरी, हमारी जो बेटी है द वांडा, शी विल नॉट गो टू, शी विल नॉट बी गोइंग टू द स्कूल बिकॉज we are moving to some big city, right? So we are not living here now, and now we will not be able to make fun of her. Now nobody will get such chance to embarrass her. सबको बुरा लगता है, इवन पेगी भी सोचती फील करती है, और मेडी ज़्यादा फील करती है, सारे क्लास ऐसा फील करते हैं, और टीचर को भी लगता है ऐसा. टीचर सजेस्ट करती है सबको, वी शुड नॉट डू दैट, हमें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, किसी स्टूडेंट के साथ भेदभाव नहीं करनी चाहिए. वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट, वी शुड नॉट मेक फन ऑफ एनीबॉडी इन बिहाफ ऑफ हिज gesture, in behalf of his appearance, on his dresses, on his knowledge. We should not do that. सारे को मन में आती है कि हाँ हमें नहीं करना चाहिए. फाइनली सारे मानते हैं इस बात को. लेकिन उसी बीच मैडी यूज टू थिंक, मैडी सोच रही होती कि अभी तो शहर से बाहर नहीं गई, एटलीस्ट एक बार हमें चांस लेना चाहिए. वी शुड गो टू मीट हर, हमें जाना चाहिए, उससे मिलना चाहिए. और बट वो सोचती ही रहती है. उसके बीच में पेगी भी कहती है अपने काम करने के बाद कि हाँ चलते हैं मिलने. फिर दोनों जाते हैं, पता चलता है वहाँ पर नहीं रहती है वो. एक लेटर छोड़ के आते हैं उस पेगी हाई सोसाइटी में, बेगिंग हाई सोसाइटी में. उस लेटर का वो इंतजार करते हैं. वो लोग को रात में नींद नहीं आता पूरी रात कि हमने गलत किया है. कहीं ना कहीं मेडी सोचती है कि इतना भी बुरा नहीं किया गया था उसके साथ, ठीक है. एनीवे, लास्ट में क्या होता है, उनको लेटर नहीं आता है. बहुत दिनों बाद एक लेटर आता है, और उस लेटर में लिखा हुआ रहता है, पेगी लेटर भेजती है मेशन के नाम से, यानी कि जो लेडीज टीचर हैं उस क्लास का. वो कहती है मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे सबका याद आता है, मैगी कैसी है, पेगी कैसी है, मैडी कैसी है. वो लोग सारे बहुत ध्यान से सुनते हैं उस लेटर के बारे में, और बहुत लोगों को फील होता है बाद में. उसके बाद डिसाइड करती है पेगी भी कि आज के बाद मैं किसी की मजाक नहीं उड़ाऊंगा, किसी को एम्बेरस नहीं करूंगा. और इस तरह से कहानी फिनिश हो जाती है, राइट. लेट्स से लाइन बाय लाइन जाते हैं एक बार हम, एज आई डू ऑलवेज. Yes, while the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully and thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. Attention class, everybody, everyone back to their seat.
When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Wanda's father that I want to read to you. क्या होता है सर्कल द रूम, लोग रूम में घूम रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं, कोई टहल रहा होता है, कोई आसपास चल रहे होते हैं। उस समय मिस मेसन के पास एक लड़का आता है हाथ में लेटर लिए हुए। वो बोलता है, मॉनिटर आता है बेसिकली क्लास का, बोलता है कि ये लेटर है, इसको किसने, प्रिंसिपल ने दिया है आपको देने के लिए। वो 2-3 बार पढ़ती है ध्यान से लेटर को और देखती है कि लेटर वांडा के फादर के द्वारा लिखा हुआ है, तो क्लैप करती है हाँ ऐसे ऐसे, गाइज प्लीज़ कम ऑन, हमारे पास एक लेटर है कुछ सुनाने के लिए आप लोगों के पास। जो सारे लोग सफल हो रहे होते हैं, इधर उधर घूम रहे होते हैं, सारे बैठ जाते हैं आराम से, क्लास शांत हो जाता है। वो बोलती है कि ये लेटर वांडा का फादर की तरफ से है, तो उन लोग को और टेंशन होता है, बिल्कुल क्वाइट हो जाती है क्लास, कोई गलत तो नहीं हो गया। Miss Mason stood there a moment and the silence in the room grew tense and expectant। ठीक है, अब उस रूम में क्या है कि मैडम पढ़ने को जब पढ़ने जाती हैं, वो ध्यान से उसको देख रही होती है लेटर को, तो पूरी क्लास शांत हो जाता है, सबको लगता है क्या हो गया, बहुत उम्मीद के साथ देखते हैं कुछ हो तो नहीं गया वांडा के साथ, कुछ गलत बात तो नहीं हो गई। The teacher adjusted her glasses slowly and deliberately, her manner dedicated that what was coming, this letter from Wanda's father, was a matter for great importance। अब क्या करे कि ये जो मैडम थी, उन्होंने चश्मा निकाली और उस पर थोड़ा फूंक लगाया, उस चश्मे पे साफ किया। उसके बाद वो बड़ी ध्यान से देख रही थी, लोग को लग रहा था कि कुछ गलत तो नहीं हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्यों हम मैडम इतना ध्यान से देख रही लेटर को। सारे बहुत एक्साइटेड थे उस सुनने के लिए उस लेटर के बारे में। एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मेसन रीड द ब्रीफ नोट। जैसे ही मैडम पढ़ना शुरू करी लेटर को, बहुत ध्यान से सारे देख रहे थे कि आखिर उस लेटर में लिखा क्या उसके फादर ने, इतने दिन से क्यों नहीं आ रही है, प्रॉब्लम क्या है, परेशानी क्या है, सब कोई सोच रहे थे। दे हैड देयर ओन माइंड, द क्लास वाज फुल साइलेंट, दे ऑल आर अटेंट विथ फुल अटेंशन, दे ऑल आर इन प्रेजेंट दैट व्हाट हैपेंड, व्हाट इज द मैटर, दिक्कत क्या है, क्या कहना चाह रही हैं वो। लेटर इस तरह से है, डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, Jack also. Now we move away to the city, to the big city. No more no more holler Polak. No more ask why funny name. Plenty of funny names in the big city. Yours truly, जैन पेट्रोन्स्की। उसमें लिखा होता है कि मैडम अब वांडा आपके स्कूल में कभी नहीं जाएगी, जैक भी नहीं जाएगा, और अब कोई होलर पोल, अब कोई भी कहने के लिए कोई बात नहीं रही कि इसका नाम ऐसा है, इसका नाम फ़नी है, देखने में फ़नी लगती है, अब कुछ नहीं होगा ऐसा, क्योंकि जाएगी नहीं तो आपके पास चांसेस नहीं होगा बच्चों को कहने के लिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लिखता है कि नो मोर क्वेश्चन, सॉरी नो मोर आस्क वाई फनी नेम, कोई ज़्यादा पूछने की बात नहीं कि इतना फ़नी नेम क्यों है, सारे कुछ मेंशन करके 2-3 लाइन में इन्होंने पढ़ दिया। उसके बाद नीचे लिख दिया योर ट्रूली जैन पेट्रोन्स्की। A deep silence met the reading of this letter. Miss Mason took off her glasses, blew off them, and wiped them on her soft white handkerchief. Then she put them on again and looked at the glass. When she spoke, her voice was very low. ठीक है, वो क्या करें कि दोबारा अपने चश्मे ग्लास को निकालती हैं, उसको फूंक लगाती है, अपने हैंडकरचिप निकाल कर रुमाल से उसको पोंछती हैं। ठीक है, और फिर स्लो वॉइस में बोलती हैं वो, आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन रूम 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his and her name happened to be a long, unfamiliar one. I prefer to think that what was said in thoughtfulness. ठीक है, वो बोलती हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि हमें जानबूझकर किसी की नाम कैसा भी हो, किसी तरह का हो, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और आप लोग नहीं उड़ाएंगे मजाक। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि इस लेटर में क्या लिखा हुआ था, इसका मतलब क्या हो गया जो आप लोगों ने किया। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील
the way I do, that this is a very unfortunate thing to have happen. Unfortunate and said both, and I want you all to think about it. ठीक है, वो बोलती है मैडम कि मुझे पता है कि जिस तरह से मुझे फीलिंग हो रही है उस इस लेटर को पढ़कर, और जो आप लोगों ने किया और जो उसके फादर ने फील किया, वांडा ने फील किया, आप लोग भी शायद वैसा ही फील कर रहे होगे। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि हमें किसी के साथ किसी का नाम किसी तरह का होने से, किसी का शक्ल किसी तरह का होने से, किसी का ड्रेस किसी तरह का होने से हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी का। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड. Middle, Maddie tried to prepare her lesson, but she couldn't put her mind on her work. She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. ठीक है, ये स्टडी पीरियड था, जो पहला पीरियड था क्लास का, स्टार्ट ही हो रहा था क्लास। सारे लोग पढ़ाई कर रहे थे, मैडी उसको पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, और सब बातें उसके माइंड में घूम रही थी। बाई हार्ट बाई स्टमक उसके मन बातें जो थी बिल्कुल अंदर उसके घर कर गई थी। True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. She had stood by silently, and that was just as bad as what Peggy had done. Worse, she was a coward. At least Peggy hadn't considered they were being mean, but she Maddie had thought they were doing wrong. She could put herself in Wanda's shoes. ठीक है, अब मैडी के मन में तरह तरह की बातें आती है। वो कहती है कि ओह, ये जो पेगी उसके साथ करती थी, वो ड्रेस वाली क्वेश्चन पूछती थी बार बार कि तुम्हारे पास कितने ड्रेस हैं, उसको ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। वो कावर्ड थी, वो डरती थी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि उससे बार बार क्वेश्चन किया जाए, उसको सताया जाए, उसको परेशान किया जाए, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। बार बार सोच रही थी मैडी। Goodness, wasn't there anything she could do? Oh my God, हे भगवान, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकती हूँ उसके लिए। If only she could tell Wanda she hadn't mean to hurt her feeling. Only वो क्या कर सकती है, और कि वांडा को बोल सकती थी जाकर कि हमारा कहीं भी दूर दूर तक ऐसा कुछ भावना नहीं था, तुम्हारे भावना को ठेस पहुँचाने के लिए हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। She turned around and stole a glance at Peggy, but Peggy didn't look up. She seemed to be studying hard. वो चाह रही थी कि नज़र चुरा के पेगी की तरफ देखने के लिए, लेकिन पेगी नहीं देखी क्योंकि वो पढ़ रही थी, ध्यान से पढ़ रही थी, क्योंकि स्टडी पीरियड चल रहा था। She seemed to be studying hard. वो बहुत मेहनत कर रही थी, पढ़ रही थी। Maddie had to do something. She had to find Wanda's Pentronsky. Maybe she had not yet moved away. Maybe Peggy would climb the heights with her, and they would tell Wanda she had owned the contents, that they thought she was smart and 100 dresses were beautiful. ठीक है, अब तरह तरह की बातें सोच रही है, बोल रही है कि शायद अभी हम मेरी जा सकती हूँ उसके घर पे, उसको बता सकती हूँ कि शी इज़ द विनर, उसने कॉन्टेस्ट विन किया है। ठीक है, उसने जो 100 ड्रेसेस बनाई बहुत ब्यूटीफुल थी, लोग बड़ाई कर रही थी। ये सब शायद जाके मैं कहूँ उसको, मन में भावना जग रही थी कि मैं जाऊँ उसके घर पे होगी, ये सारा कुछ बताऊँ उसको मैं। When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness. Right. When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." पेगी अपना काम कर लेती है, उसके बाद उठती है, प्रिटेंड करते हुए बताती है, ठीक है, कि प्रिटेंड मतलब दिखावा करना वाला रूप में, उसको लगता है मैगी को दिखावा कर रही हो करके। वो बोलती है कि हे लेट्स कम, हो सकता है अभी अभी वो वांदा घर छोड़ के नहीं गई होगी, हो सकता है घर पर मिल जाए, चलें एक बार मिलने उससे। वो मैडी को कहती है। मैडी तो ऑलरेडी मन में सोच रही होती है बात कि शायद हम जाके मिलते उससे। सो पेगी had the same idea. Maddie glowed. Peg was really all right. ऑलरेडी मैडी के मन में आइडिया था ही, जैसे वो बोली उसके चेहरे चमक गए कि शायद अब हम जाकर मिल सकते हैं। द टू गर्ल्स हरिड आउट ऑफ द बिल्डिंग्स अप द स्ट्रीट टुवार्ड्स Boggings Heights, the part of the town that was such a forbidding air on these kinds of a November afternoon, drizzling
डैम्प एंड डिसमल। डैम्प एंड डिसमल मीन्स होता है हियर एक्सप्रेसिंग अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस। ठीक है, ये लोग होपलेसनेस यानी कि इनको लग रहा था कि शायद मिले ना मिले करके, और वो विंड हवा चल रही थी वहाँ पे, और मौसम था इस तरह का, नवंबर का आफ्टरनून था तो हल्का हल्का बारिश भी हो रहा था। ठीक है, और इस तरह का मौसम था। एनीवे लोग एक होप के साथ जा रहे थे, काश मिल जाए वे। We at least, said Peggy gruffly. I never did call her a foreigner or make fun of her name. I never thought she had the sense of no, we were making fun of her. अब पेगी रास्ते में जाते हुए बात करती कि मैंने कभी उसकी जात के बारे में नहीं मजाक उड़ाया, मैंने कभी उसको फॉरेन होने का, दूसरे कंट्री का होने के बारे में मजाक नहीं उड़ाया, मैंने कभी उसके ऐसे बारे में मजाक नहीं उड़ाया। मैं तो केवल एक छोटी सी बात पूछता था कि तुम्हारे पास कितने ड्रेस हैं, क्योंकि वो बार बार ऐसे क्यों बोलती थी, मुझे समझ में नहीं आता था। ये सब बात करते हुए जा रहे होते हैं वो लोग। She wanted to tell her what they were sorry they had speaked on her and how wonderful the whole school thought she was, and please not to move away and everybody would be nice. She and Peggy would fight anybody who was not nice. वो लोग कह रहे थे कि हम अभी जाकर माफ़ी मांगेंगे, उससे बोलेंगे कि तुम कितनी अच्छी भी हो, तुमने अच्छा करा है, और आज के बाद कोई भी स्कूल का बच्चा तुमसे मजाक नहीं उड़ाएगा। यदि कोई उड़ाएगा तो हम लोग आगे आएंगे, हम लोग सामने खड़े होंगे और हम लोग इस चीज़ को दबा देंगे। अब कुछ नहीं ऐसा होगा, माफ़ी मांगेंगे, उसको रोक लेंगे जाने से। ऐसा दोनों सोचते हुए रास्ते में जा रहे थे। The two girls hurried on. They hoped to get to the top of the hill before dark. वो दोनों लड़की जा रही थी, वो सोच रही थी कि रात होने से पहले उसके घर तक पहुंचा जाए। I think that's where the Petronskis lives, said Maddie, pointing to a little white house. मैडी शायद कभी गया हो, उसके घर पे गई होगी। जब वो लोग पहुंच गए तो मैडी एक पॉइंट करती है कि शायद वही इसी में रहती है वो वांडा, वही उसका घर है। Wisp of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens. आसपास में घास काफ़ी चिपके हुए थे, घास का वो बना हुआ था, ढेर सा बना हुआ था जहाँ तक वो लोग जा रहे थे, एक किचन के जैसा। द हाउस एंड इट्स स्पर्स लिटल यार्ड लुक सैबी बट क्लीन। उसकी जो घर थे, जो घर के पीछे का जगह था, आया का था, वो थोड़ा सा पुराना लग रहा था, जर्जर टाइप का लग रहा था, लेकिन साफ सुथरा था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस, हर शेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, शैबी बट क्लीन। उससे उसको याद आ रहा था वांडा का और ड्रेस जो शैबी था, जर्जर था, लेकिन क्लीन था। यानी उसके घर से वो इमेजिन कर रही थी, कंपेयर करने लग गई। There was no a sign of life about the house. Peggy knocked firmly on the door. Knocked short. Peggy knock मतलब होता है ठकठकाना। Knocked firmly on the door, but there was no answer. She and Maddie went around to the backyard and knocked here. There still there was no answer. उस घर में ऐसे किसी के रहने का नहीं समझ में आ रहा था, कोई रहता होगा इस घर में करके। वो लोग दरवाज़ा भी ठकठकाए, कोई नहीं आवाज़ आया, फिर पीछे भी गए, कुछ वो लोग को सुख बुक नहीं मिला है, कोई शायद इस घर में रहता है करके, कोई आंसर नहीं मिला वो लोग को। देयर वाज नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रोन्स्किन किस वर गॉन, हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स टू शो दैट वन इज सॉरी फॉर डूइंग समथिंग गुड। ठीक है, वो लोग बोले कि अब कोई डाउट नहीं है इसके बारे में। वो लोग चले गए, लेकिन चक्कर है कि एक कैसे हम लोग मैसेज पहुंचाए वहाँ उसके पास तक कि हम लोग सॉरी बोलना चाहते हैं तुमसे, जो हम लोगों ने किया, जो तुम्हें फीलिंग हुआ हमारे बारे में। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन टू हिल। वो लोग धीरे धीरे वापस आने लग गए। वेल एनीवे, सेड पेगी, शी हैज़ गॉन नाउ, शो व्हाट कैन वी डू बिसाइड्स व्हेन आई वाज आस्किंग her about all her dresses, she probably was getting good ideas on her drawing. She might not even have won the contest otherwise. Maddie turned his idea carefully over in her head, for if there were anything in it, she would not have to feel so badly. But that night she couldn't get to sleep. She thought about Wanda's and her faded ब्लू ड्रेस एंड द लिटल हाउस शी हैड लिव्ड इन। ठीक है, मैडी घर पे आती है, उसको नींद नहीं आता, वो सोचती रहती है उसके बारे में कि ऐसा कुछ उसने छाप छोड़ा हो, ऐसा कुछ उसने दिखाया हो
कोशिश करा और शो करने का कि हम तुमसे दुखी नहीं, हम तुमसे परेशान नहीं हैं, कुछ ऐसा क्लू ढूंढने की कोशिश कर रही थी जिससे संतुष्टि मिल जाए उसको, ठीक है। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज हंड्रेड्स ग्रेटेस्ट मेड ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम. At the last, Mary sat off in bed and dressed her forehead tight in her hands and really thought this was the 100th dress she had ever done. After a long, long time, she reached an important conclusion. She was never going to stand by and say nothing again. ठीक है, अब क्या हुआ कि इधर ये लोग को नींद नहीं आ रहा था, मैगी को और पेगी को भी। ये लोग अब डिसाइड किए कि आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। बार बार उसके ड्रेसेस के बारे में याद आ रहा था, जो कंटेंट जीती थी, 100 ड्रेसेस जो लाइनअप थे सारा जो बनाई थी, लेकिन वो मन मन में कर रही थी कि आज के बाद हम कभी भी किसी को ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे उसको दुख लग जाए और जिससे वो जिसकी उसकी ठोस पहुँचे उसकी भावनाओं को। इफ़ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन because they were funny looking or because they had a strange name, she would speak up, even if it means losing Peggy's friendship. She had no way of making things right with Wanda, but from now on she would never make anybody else that unhappy again. कह रहा है कि यदि आज के बाद कोई भी किसी को मजाक उड़ाया उसके नाम को लेकर, उसके जात को लेकर, धर्म को लेकर, कपड़े को लेकर, ठीक है, मैं पैगी सोच रही थी हम छोड़ेंगे नहीं उसको, हम उसको उसकी क्लास लेंगे, हम उसको क्लास लगाएंगे, बोलेंगे, उसके अगेंस्ट खड़े होंगे हम, भले ही हमारा दोस्त यारों क्यों नहीं टूट जाए उससे, लेकिन हम आज के बाद ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा जो कि किसी को अनहैप्पी कर दे, दोबारा किसी को दुखी कर दे। On Saturday, Maddie. On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. सैटरडे को मैडी पेगी के साथ टाइम बिताई, पेगी के साथ रही। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांदा पेंट्रोंस्की। वो लोग वांदा पेंट्रोंस्की के नाम एक लेटर लिख रहे थे। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड ओन। एक लेटर था, फॉर्मल लेटर दोस्त के लिए, ठीक है। उसमें वो लोग लिखना चाह रहे थे कि तुमने कॉन्टेस्ट जीती है, स्कूल का कॉन्टेस्ट तुम्हारे नाम है, तुम जीत चुकी हो। दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइविंग वर्क। उन्होंने उसमें भी लिखा कि तुम्हारे ड्राइविंग कितना सुंदर था, कितना अच्छा है। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक वेयर शी वाज लिविंग एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर। और ये भी जानना चाह रहे थे कि तुम जहाँ पे रह रहे हो कैसी जगह है, कैसे रह रहे हो, और तुम जिस स्कूल में अब पढ़ने जा रहे हो वहाँ के टीचर कैसे हैं। They had meant to say they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend, and they signed it with a lots of XS for love। ठीक है, उनको साथ में भी कहने का मतलब था, लेटर में लिखने का मतलब था कि हम लोग रियली सॉरी हैं, हम लोग बहुत दुख प्रकट कर रहे हैं तुम्हारे सब भावनाओं को, जो हमने ठेस पहुंचाया, तुम्हें लगा हम गलत थे, मैं बिल्कुल सॉरी करना चाहता हूँ। साथ में लास्ट में उन्होंने लिखा अ लॉट्स ऑफ XS, लिखा लव के लिए, लेटर में लिखा जो। दे मेल्ड द लेटर टू बोगिन्स हाइट्स। उन्होंने बोगिन्स हाइट्स को लेटर मेल किया, राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप। और उन्होंने किया कि इस एनवेलप को फॉरवर्ड कर दो जहाँ पे वो लोग गए हैं, जहाँ शिफ्ट हुए हैं, ये सोच के कि ये मिल जाएगा वो लोग को। डेज पास्ट एंड देयर वाज नो आंसर बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट। ठीक है, काफ़ी दिन बीत गए, दिन बीतते जा रहे थे, कोई आंसर नहीं आया उस लेटर का, रिटर्न में कोई लेटर नहीं आया। और वो लोग सोच रहे थे कि शायद वांडा को मिल चुका हो लेटर, ऐसा होप कर रहे थे वो लोग। पर हैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर। वो लोग सोच रहे थे कि शायद वो बहुत दुखी होगी, हम लोग मजाक उड़ा देते उससे, और वो शायद हमें रिप्लाई ना करे उस दुखी भावनाओं के साथ। यू कुड नॉट ब्लेम हर, सॉरी रिसीव्ड परहैप्स, यू कुड नॉट ब्लेम हर, तुम उसको ब्लेम नहीं कर सकते। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर। अब हफ्ते बीत गए, फिर भी आंसर नहीं आया उस लेटर का कुछ। पेगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग अ स्पीचलेस अबाउट वांडा। ठीक है, पेगी और मैडी दोनों भूलना चाह रहे थे उसके बारे में, और रात में वो सोने की कोशिश कर रहे थे, बट स्पीचलेस थे वांडा के बारे में, वो कुछ बोल नहीं सकते थे। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट crowds from girls who were trying to tease her with
हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गॉट। वही बार बार याद आ रहा है उसको कि हम लोग कैसे उसको कहा करते थे, क्या कहा करते थे, कैसे बोदर करते थे, परेशान करते थे। एंड बिफोर वाडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप, देन एवरीबडी वुड फील ashamed द वे शी यूज टू फील। अब मैडी कह रही कैसे वो बोला करती थी और फिर वो कैसे कहती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, मैगी जब पूछती थी उससे वाडा से, और फिर वाडा चुप हो जाती थी, तो अपने लिप्स को चिपका लेती थी और साइलेंट हो जाती थी। तो और जब वो कुछ बोलना चाहती थी तो कैसे वो बोलती थी मैगी साइलेंट। सो वो सब चीज़ें उसकी भावनाएं उसके मन में घूम रही थी मैडी के। Now it was Christmas time and there was snow on the ground, Christmas bells and small trees decorated on the classroom। अब क्रिसमस का टाइम आ गया था, ठीक है, ग्राउंड पे स्नो गिरे हुए थे, स्नो की बारिश हुई थी, और स्नो मतलब बर्फ़ होता है। क्रिसमस बेल्स और स्मॉल ट्री का क्रिसमस ट्री लाया गया था, उसको स्मॉल स्मॉल बॉल से डेकोरेट किया गया था, सजाया गया था। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। ठीक है, और उस ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, स्कूल का लास्ट डे जब हॉलीडे था, होना था, मतलब सबको हॉलीडे पे जाना था, तो लास्ट डे में टीचर ने एक पूरे क्लास को एक लेटर दिखाया कि हमारे पास एक लेटर आया है करके, क्या मैंने लेटर रिसीव किया है। यू रिमेंबर वांडा पेंट्रोंस्की द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु ऑन द ड्राइविंग कॉन्टेस्ट। आप लोग को याद है वो, अब काफ़ी दिन हो गया था तो इस तरह से बोले थे, आपको याद है वो वांडा जिसने एक कॉन्टेस्ट जीती थी लास्ट टाइम में, ड्राइंग कॉन्टेस्ट। वेल शी हैड रिटन मी एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू। और बोलती है वो जो मेसन मैडम होती हैं कि तुम्हें पता है उसने लेटर लिखा है हम लोग को, जो कॉन्टेस्ट जीती थी वांडा, पता है वो जो पहले रहती थी यहाँ पे, जो तुम लोग चिढ़ाया करते थे, उसकी तरफ से लेटर आया है। मैं बहुत खुश हूँ उस लेटर को पढ़ के, और अब हमारे पास एड्रेस आ गया है उसका। सो मैं उसका मेडल जो जीती थी ड्राइंग में उसको भेज दूंगा, मैं उसको कुरियर कर सकती हूँ मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ उसने क्या लिखा है लेटर में आप लोगों को सुनाने के लिए। द क्लास सेट अप विथ अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली। पूरा क्लास शांत से बैठ जाता है, वो ध्यान से सुनने लगता है उसको कि क्या पढ़ रही हैं। अब लेटर में क्या लिखा हुआ, तो वो लिखा हुआ है डियर मिस मैसन, लिखा हुआ है लेटर में। लेटर इस तरह से, हाउ आर यू एंड रूम 13, आप कैसे हो और 13 नंबर रूम का क्या हाल चाल है। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू ड्रेसेस। उसमें लिखा हुआ कि सारे वो गर्ल्स को बोल दीजिए वो जो मेरे 100 ड्रेसेस के डिज़ाइन बनाए थे वो रख लें, क्योंकि हमारे पास अगेन हमारे पास 100 मोर ड्रेसेस आ गए हैं जो हमारे क्लोजेट में हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सारे क्लोजेट में लाइंड अप हैं। आई वुड लाइक दैट गर्ल पेगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन। अब वो उस लेटर में लिखिए कि मुझे उसकी डिज़ाइन जो कि पेगी बनाई थी ग्रीन वाली बहुत अच्छा लगा था, ट्रिमिंग वाली, और मैडी जिसने कि ब्लू वाली बनाई थी, मुझे बहुत अच्छा पसंद था वो लोग डिज़ाइन। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डजेंट इक्वलाइज विथ यू, मेरी क्रिसमस टू यू ऑल एवरीबडी। ये जो क्रिसमस है बहुत याद आ रहा है वहाँ की क्रिसमस जो बिताया करते थे। यहाँ की जो टीचर हैं आपके बराबर नहीं है, आपसे इक्वल नहीं कर सकता उनका, लेकिन एनीवे मेरी क्रिसमस, ठीक है, हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस बधाई, क्रिसमस की हार्दिक बधाई, योर ट्रूली वांडा पेट्रोन्स की, वो लास्ट में साइन करती है। ऑन द वे फ्रॉम स्कूल ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पेगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। ठीक है, स्कूल से घर जाते समय मैडी और पेगी उसकी ड्राइंग था बड़ी ध्यान से पकड़ के ले जा रहे थे। ऑल द हाउसेस हैड wreath and holly in the windows. Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked, and in the window, candy, peppermint sticks, and cornucopias of shiny transparent paper were strung। वो लोग जब घर जा रहे थे उसके तरफ देखे कि सारे दुकानें सजी हुई हैं, काफ़ी जगह पे ट्री सजे हुए हैं, उसका क्रिसमस ट्री है, डिजाइन किया हुआ है, पूरा भरा हुआ है स्टोर, ग्रोसरी वगैरह, ये सब वो देखते जा रहे थे वहाँ से।
ठीक है। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर ऑन द स्नो। जो हवाएं थी वो पूरा स्मेल कर क्रिसमस का धुन मचा हुआ था, मतलब क्रिसमस जैसा फीलिंग आ रही थी। उन लोग को पूरा सारे जगह पे अलग कलर से आसमान चमक रहा था, स्नो तक की बारिश हो रही थी, वो उनकी डिफरेंट कलर्स में रिफ्लेक्शन हो रही थी, रिफ्लेक्ट कर रही थी। बॉयज सेड पेगी, पेगी बोलती है बॉय दिस शोज शी रियली लाइक्स अस, इट शोज शी गॉट आर लेटर एंड दिस इज द हर वे ऑफ शेइंग दैट एवरीथिंग्स ऑल राइट एंड दैट आई होप सो, सेड मैडी सैडली। अब मैं कहती बॉयज पता है उसने इस लेटर, उसको ये लेटर के थ्रू इस तरह से लिखने का एक हम लोग से दुखी नहीं है करके जताने का तरीका था, जिस तरह से उन्हें लिखा सबके नाम से, और हमें लगता है हम लोग से दुखी नहीं थी। मैडी भी इसमें हाँ में हाँ मिला के बोलती है, दुखी होते हुए कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, सहमत होते हुए बोलती है इस बात को। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटल लाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन एंड कुडंट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम। वो इसलिए दुखी थी मैडी कि आज के बाद उस लड़की से कभी नहीं मिल पाएंगे हम, वो छोटी सी प्यारी सी लड़की, लिप्स वाली लड़की, पॉलिश लड़की, ठीक है, इसलिए वो करके दुखी थी और उसके साथ कभी सही नहीं कर पाएंगे जो हमने गलत फीलिंग कराया। शी वेंट होम एंड शी पिन्ड हर ड्राविंग्स ओवर अ टोर्न प्लेस इन द पिंक फ्लोर्ड वॉल पेपर इन द बेडरूम। वो अपने घर में ले जाती उसकी ड्राविंग जो वांडा बनाई थी अपने घर में, वो एक टूटे हुए फटे हुए उस पर चिपकाती है, टोर्न पिन हर ड्राइंग ऑन द टोर्न प्लेस, टूटी हुई जगह के ऊपर वो चिपकाती है पिन लगा के वॉलपेपर पे बेडरूम में। द शैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर। शैबी रूम जर्जर रूम था उसका, मैडी भी उतना रिच घर से नहीं था, उसका भी घर शैबी टाइप का। शैबी मतलब होता है जर्जर टाइप का, पुराना टाइप का। उस पुराने टाइप में उसको उसके पिक्चर लगाने से ब्रिलियंस आगे चमकने लग गई करके। मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग। मैडी अपने बेड पे बैठी ड्राइंग को ध्यान से देख रही थी, ध्यान से देखने लगी। शी हैड स्टूड बाई एंड सेड नथिंग बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे। वो खड़ा हुई कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन वो सोच रही थी वांडा उसके लिए बहुत अच्छी थी। टीयर्स ब्लर्ड हर आईज एंड शी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर। उसके आंख भर आई आंसुओं से और उस पिक्चर को ध्यान से देखती रही उसी आंसू भरी हुई आंखों से। देन हैस्टली शी रब्ड हर आइज एंड स्टडीड इट इंटेंटली। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो देख रही थी ध्यान से, आंख में आंसू हो गया। रब मतलब होता है, ठीक है, ऐसे करना यानी कि घिसना। तो उसने अपनी आंखों से आंसू को मिटाया और बड़ी ध्यान से पिक्चर को देखने लग गई। द कलर इन द ड्रेस वर सो विविड दैट शी हैड scarcely noticed the face and head of the drawing। ठीक, अब उसको ध्यान से समझ में आया, जो पिक्चर बड़ी क्लियर था, उतना देर ध्यान से देखने के बाद उसने उस पिक्चर में क्या देख पाया कि उसमें हेड भी है और उसमें फेस भी है। जब नोटिस करा तो उसको ऐसा नजर आया उस पिक्चर में, बट इट लुक लाइक हर, लेकिन ये उसके जैसी लगता है, मैडी, मैडी के जैसा लग रहा था। इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ, ये बिल्कुल उसके अपने माउथ जैसा देखने में ध्यान से नजर आ रहा था। वाई इट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ, ये बिल्कुल उसके जैसा ही क्यों नजर आ रहा था। वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, अब उसको मन में आता है कि वांडा पक्का है मेरे लिए बनाई थी। एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पेगेज। पेग, शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर। ठीक है, वो दौड़ती हुई वांडा के घर में गई और वांडा को बोली कि पेग, ठीक है, मुझे अपना पिक्चर दिखाने दो, लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे तुम्हारा अपना पिक्चर देखने दो। व्हाट्स द मैटर, पेगी बोलती क्या बात है। आस्ट पेगी, पेगी पूछती है। एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वांडा's ड्राइंग वर laying फेस डाउन ऑन द बेड। वो लोग अपने रूम पे जाते हैं जहाँ वांडा का जो ड्राइंग था वो बेड मतलब बेड पे रखा हुआ था। वेयर वांडा ड्राइंग वर लेइंग फेस डाउन ऑन द बेड, मैडी केयरफुली रेज्ड इट। मैडी आराम से उठाती है उस पिक्चर को। लुक शी ड्रीव यू, देखो ये तुम्हें बनाई है इस पिक्चर पे। दैट्स यू, या ये तुम हो। शी एक्सक्लेम, चिल्लाकर बोली। एंड शी हेड एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड नॉट लाइक पेगी। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर did
लुक लाइक पेगी, और जो उसका हेड और फेस था उस पिक्चर का पेगी जैसा नजर आ रहा था, लग रहा था. एनीवे, यस, शी मस्ट हैव अग्रीड मैडी, and she blinked away the tears and came every time she thought of Wanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over and the group of laughing girl after she had walked off after she had said sure 100 of them all lined up. ठीक है, अब उस पिक्चर को देख के वो लोग अपनी आंखें ब्लिंक करते हैं, मतलब ब्लिंक मतलब होता है बुझाना और ठीक है बंद करना और खोलना जल्दी जल्दी. सो ब्लिंक करते हैं और उसके बाद उनको सारे उसके इमेजिनेशन आने लग जाते हैं कि स्कूल में कैसे होया करता था जब हम पूछते थे उससे. वो बेचारी लड़की अकेले खड़ी रहती थी, वो बोलती थी 100 रेसेस लाइन अप, वो सारी इमेजिनेशन होने लग जाता है वो लोग के माइंड में. ठीक है, अब इस तरह से यहाँ से एक कहानी खत्म होती. तो आई थॉट फर्स्ट we finished, second part is finished, so 100 race story is finished. It was a really nice story that has given many sense to learn that we should never tease anybody, we should never bother anybody, we should not be the couch to hurting somebody's feelings, to hurting somebody's emotion, and that is the way we should do. So यहाँ पे राइटर ने जो लिखने की कोशिश किया है, समझाने की कोशिश किया, it is a nice story, we should follow and we should learn something from that. So thanks, I think it will definitely help you. Bye.